آج میرے ساتھ ہماری دو بہت ہی پیاری لیجنڈ اداکاریں موجود ہیں اور وہ اداکاریں موجود ہیں ان کو دیکھنے کے لیے میں بہت لک فارورڈ کر رہی تھی اور فائنلی آج میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ مجھے ان کے ساتھ کرنی تھی دل کی بات. اور آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹیبل پہ ہمارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے دل کی بات جس میں ہم اوت لیتے ہیں کہ جو بھی کہیں گے دل سے کہیں گے, اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. اور اگر دل سے نہ کہا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دماغ سے کہیں گے. دل سے آپشن نہیں ہے اس میں, آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے لیے سے اوت لے جی. ہاں اچھا جی, جو کہیں گی آپ دل سے کہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو کہیں گے دل سے کہیں گے ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہے, چلے بسم اللہ کرتے ہیں. سو پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اپنی شخصیت کے کس پہلو سے آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی وہ سائڈ سامنے نہ آئے تو اچھا ہے؟ جب میں چھپکلی کو دیکھتی ہوں جو میرا حال ہوتا ہے وہ سائڈ کوئی اور نہ دیکھے. جب میں کوئی جانور آ جائے, آئی ایم ویری ویری اینیمل لور, بٹ دا مومنٹ آئی سی اے لیزرڈ وہ سائڈ کوئی میری نہ دیکھے. وہ پھر میں وہ کوئی چیز بھی آ جائے بس وہ حالت بری ہو جاتی ہے بہت زیادہ. آپ کی شخصیت کی ایسی کون سی سائڈ ہے؟ آئی تھنک غصہ. اوور دا مینی ایئرس آئی ایم ناٹ این اینگری پرسن, مجھے ایسے غصات, لیکن میں اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی کسی کے اوپر غصہ جو ہوتا ہے نا وہ نہ آئے. ہاں شکایت یس, غصہ نہیں. آپ کی زندگی میں وہ کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے خدا کا بہترین تحفہ ہے؟ ہاں یار خدا سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی زندگی میں ایسا کون سا شخص ہے انسان ہاں جو اللہ کا تحفہ ہے آپ کے لیے؟ مائی سیلف. آپ کے لیے؟ میرا میاں, جس کے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے تو کچھ ہوگا اس میں. سو یہ اللہ کے میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ ایک ایسا آدمی میری زندگی میں ہے جو مجھے میری طرح جینے کی اجازت دیتا ہے بغیر کہے. سمجھ آئی یہ بات؟ بالکل بالکل سمجھ آئی. ہاں دیٹ. اور پھر میری فیملی, ہاں مطلب میری فیملی میں مینس میرے رشتہ دار, میری پھوپھیاں. کوئی ایک ایسا شخص جو آپ کہ یہ تو اللہ نے میرے لیے تحفہ بھیجا؟ میری پھوپھی. کیا آپ پھوپھی سے کلوز ہیں؟ میں بہت کلوز ہوں, پالا ہے انہوں نے مجھے. کیا کبھی کبھار مطلبی ہونا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یا بس اپنی لائن سیدھی رکھو جو بھی ہے؟ نہیں, مطلبی ہونا میری کتاب میں نہیں ہے. میں اگنور کروں گی, میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گی, میں کنارہ کر لوں گی, مطلب ہی نہیں ہوں گی. آپ ہماری؟ ہاں اگر کوئی انسان غلط چیز کر رہا ہے, کوڑا پھینک رہا ہے کہیں پر, تو جانور کو مار رہا ہے, تو وہ میں اپنے مطلب کے لیے جا کے اس کو ضرور بولوں گی کہ نہیں بیٹا یہ چیز یہاں نہیں پھینکنی ہے, اس جانور کو مارنا نہیں ہے, کسی انسان کو تنگ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولو اس سے پلیز, غلط کر رہے ہو. یہ جو چیز ہے نا وہ میں اپنے مطلب کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروں گی. صحیح ہے. تو دیٹ از اف آئی ایم مطلب ان دیٹ وے تو لیکن ٹھیک ہے. بٹ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تھے یا اپنی یعنی کہ اپنی بات منوا کے رہتے ہیں, کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ ہاں ہمیشہ سے. ہاں کوشش کرتے ہیں, اگر اگلا نہیں مانتا تو پھر وہ اس کی اپنی وہ ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک پوائنٹ پہ لا کے بتا دیں کہ بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. لیکن پتہ کیا, یہ بات منوانے والی بات جو ہے نا, آپ کو بھی اتنی عقل اور شعور آ جانا چاہیے کہ کون سی بات منوانی ہے بھائی. مطلب یہی ہے, ایز یو گرو اولڈر آپ میں تھوڑا سا بچپن میں ضد جو ہوتی ہے وہ غلط بات ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ غلط بھی ضد ہو سکتی ہے, لیکن جیسے جیسے اب اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی بہت اللہ نے عقل دے دی ہے, تھوڑی بہت سمجھ دے دی ہے, تو اس میں جو بات منوانا آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے بری نہیں ہونی چاہیے. سو یس دیٹ. اچھا بچپن میں کبھی کوئی ایسی بات آپ نے منوائی کہ بعد میں آپ نے خود ہی ریگریٹ کیا ہو کہ وہ نہیں یہ بات نہیں منوانی چاہیے تھی مجھے؟ یاد نہیں.
याद नहीं। क्योंकि आई लिव इन द मोमेंट, आई डोंट लिव इन द पास्ट और द फ्यूचर, आई लिव नाउ, राइट नाउ। तो मुझे आधी बातें नहीं याद, ना मुझे इतना वक्त मैं सोचती हूँ कि ऐसी बातों को देना चाहिए कि आप पुरानी गड़े मुर्दे हो खेड़ते रहें, अच्छा वैसे हुआ तो भाई वो गुजर गया, खत्म हो गया। आगे अल्लाह जाने कल है नहीं है। हुमा जी आप? हाँ, जिद करके अम्मी अब्बू से कोई चीज ले ली, बाद में घर पहुंचे यार वो ले लेते ना, काश ये क्या हो गया। हाँ, वो भी काश में चला जाता है। काश वो ले लेते यार, वो तो अम्मी सही कह रही थी, ये वाला लो यार। लेकिन उस वक्त जिद आ गई थी ना। हाँ, जिद बचपन की जिद है ना। अगर अपनी जिंदगी से कोई एक चीज निकालनी हो आपको तो वो क्या होगी? कोई एक चीज निकालनी हो। हाँ, गुड वन। नेगेटिव लोग। हाँ, नेगेटिव वाइब्स। सही है, नेगेटिव वाइब्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल हुमाने सही कहा, है ना। बिल्कुल सही कहा। नेगेटिविटी। हाँ। और कोई ऐसा तरीका कि जो ऐसे लोगों को निकालने का आसान तरीका हो? नहीं, कोई आसान तरीका नहीं है इसका। नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वो ये आप किनारा कर सकते हैं, आप किनारा कर सकते हैं, बात ना करें। हाँ, बिल्कुल उनको फील करवाएं कि बस वी डोंट नीड यू एनीमोर। उनको इनकी इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इग्नोर करें। ऐसा है। कोई ऐसी दुआ जो आपने मांगी हो और वो अगले ही लम्हे कबूल होते हुए भी आपने देखी? हाँ, बहुत सारी। कोई एक माशाल्लाह। अरे बहुत सारे, बहुत सारे। सेहत, सलामती, खुशी, छोटी छोटी चीजें, ट्रैवल, आई ट्रैवल अ लॉट। ओह माय गॉड, अल्लाह का क्या शुक्र क्या कर सकते हैं। मतलब। लेकिन आपने जैसे ट्रैवल की बात करें, ट्रैवल के शौकीन भी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हुआ मेरे पास पैसे होते हैं मैं ट्रैवल करने चली जाती हूँ, फौरन के प्रोजेक्ट है? जी हाँ, टीवीसी आ जाते हैं और बस अल्लाह है ना। आई कैन नॉट टेल यू, लोगों का साथ दे रहा होता है। हाँ, आई कैन नॉट टेल यू कि उसमें कितनी दोस्त मेरी एक बहुत एक ही सहेली है, बाकी सब एक्वेंटेंसेस हैं इन माय लाइफ। वो मतलब मेरे पास अल्लाह की इतनी रहमतें हैं कि मैं हजारों साल जीऊंगी और हर रोज करोड़ों शुक्र करूंगी। आई डोंट थिंक सो। आप बताइए कोई ऐसी फौरन कबूल हुई हो? बहुत है, बहुत है। एकदम याद और फिर आता भी है कि या कुछ और मांगते। अब उस चीज से मैं कहती हूँ ना, यही काफी है। जो मांगा, वो जो लम्हा था वो पूरा हो गया, बस यही बहुत है। बस आप रिश्तों को कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकती हैं? जो रिश्ते मुझे ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये रिश्ते मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह मियाँ बच्चे दोस्त, कुछ ऐसे, मैं बहुत दूर तक जाऊंगी उनको मैं अपनाने के लिए। जी हाँ, मैं इट्स गिव एंड टेक। अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। अगर कोई मुझे कह रहा है भाई ख़त्म खलास, मैं कहूँगी थैंक यू वेरी मच, लवली टू नो यू, ठीक है जाओ। Okay. लेकिन ये कि हाँ, अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। इवन बेबी भी गिर जाता है बेचारा, रोता है, वो इसलिए नहीं रोता कि उसको दर्द हो रहा है, वो रोता है उसको लोगों ने देखा है, इंसल्ट, अटेंशन। तो हाँ, उधर तक मैं जाऊंगी जहाँ तक। और फिर आजकल टाइमिंग्स का भी है कि अब रोजाना तो हम नहीं मिल सकते, और बस यही है कि मैं तो चाहूंगी कि जो मेरे साथ लॉयल है मैं उसके साथ भी लॉयल हूँ। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया और आज भी आपको उस फैसले की खुशी है कि मैंने वो फैसला लिया? हाँ, वो कौन सा फैसला है? बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेरी पढ़ाई के हवाले से। जब मैं सोचा ये कि भाई जो भी फेलोशिप्स आती हैं ना, मैं इन सब को रिस्पॉन्ड करूँगी। तो आज भी बच्चे कहते हैं अम्मा व्हाट वाज दैट, मैंने कहा बिकॉज आई हैड द फेथ कि कोई ना कोई तो आएगा ना। तो मैंने कभी भी कोई फेलोशिप का रिस्पांस ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ दिया हो। हाँ, लेकिन सारी तो नहीं मिली, बहुत सारी मिल भी गई ना। और कौन सी फेलोशिप आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय की? सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने सेंटा क्लारा वाली लीडरशिप वाली की, जो लीवाई स्कूल ऑफ बिजनेस की थी, लेकिन हार्वर्ड की करनी चाहिए थी, लेकिन वो बहुत
गहरी थी और बहुत हार्ड थी, वो तो वो नहीं की, वो हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स की थी, लेकिन ये सेंटा क्लारा वाली और ना जेंडर वाली भी बहुत अच्छी थी। आप बताइए कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया हो जिसकी खुशी आपको आज तक हो कि मैंने ये फैसला लिया था? हाँ, मेरा बड़ा ड्रीम था राइडिंग सीखने का, हॉर्स राइडिंग। तो वो फिर मैं मेरे अब्बू के पास मैं गई, छोटी सी थी, पापा से कहा पापा मुझको एक हॉर्स चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बर्थडे पे आ जाएगा। तो फिर मेरी बर्थडे पे हॉर्स आ गया, वाओ, छोटा पोनी ब्लैक कलर का। तो उसमें मैंने राइडिंग सीखी और मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ था, क्योंकि पता नहीं बचपन से शायद एज अ चाइल्ड मुझे हॉर्सेस बहुत पसंद थे। फिर मैं थोड़ा बड़े हो गए, फिर पोलो खेलना शुरू कर दिया। तो वो मेरा एक बहुत पुराना एक ड्रीम था कि भाई आई वांट टू बी अ पोलो प्लेयर। तो वो एक ट्रू हुआ। फिर बाहर जाने का, अपनी फ्रीडम एंजॉय करने का। फ्रीडम एंजॉय का ये मतलब नहीं है कि उसको मैंने वो मतलब किसी बुरी तरह से एंजॉय किया, वो एक बड़ा पॉजिटिव होके एंजॉय किया। एंड ये एक्टिंग मेरा अपना एक है, ये बस इट्स मी। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच आई या मैं थैंक यू करती हूँ खुदा का, उसने बहुत चीजें दी हैं यार। एवरी ब्रीथ वी टेक इन द मॉर्निंग इज every moment, बेसिकली है ना, एक सांस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे आप में जो तड़प, जो एजुकेशन की मुसलसल, आप एजुकेशनिस्ट हैं, ये हम आजकल क्यों नहीं देखते? हमारी आजकल की आर्टिस्ट में, अदाकारों में क्यों नहीं देखते हैं? इसका मेरे पास असल में जवाब नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक अपनी सोशलाइजेशन से है, इसका ताल्लुक अपनी ज़ात से है, पता नहीं, मुझे नहीं, इसका जवाब नहीं है मेरे पास मदिया। मेरा ख्याल में कि मेरा तो आज भी, मैं पढ़ाती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं पढ़ाती इसलिए हूँ कि मुझे रेलेवेंट रहना है, मुझे इस ज़माने के साथ चलना है, उनसे सीखना है। और मैं हर क्लास जब शुरू होती है तो मैंने कहती हुई है कि मुझे नहीं आता कुछ, पता नहीं आप मुझसे क्या सीखेंगे, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। सो मेरी ज़ात का ये एक हिस्सा है सीखने का अमल। तो मुझे नहीं पता बाकी क्यों नहीं सीखते या नहीं सीखना चाहते या क्या सीखना चाहते, ये इसका जवाब है ही नहीं। कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? लोगों में मकबूल होना या अपनी ज़ात से मुतमईन होना? अपनी ज़ात से मुतमईन होना, ऑब्वियसली। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है? अच्छा इंसान होना। अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी दी है उसमें जो भी जाविये हैं आपके, चाहे वो जानवर हैं, मुझे भी जानवर बहुत पसंद हैं, आई टेक केयर ऑफ देम अ लॉट। इंसानों का ख्याल करना, जो अल्लाह, कुदरत का ख्याल करना, मैं माली हूँ, मैं गार्डनर हूँ, अल्लाह के निज़ाम का ख्याल करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ने जो भी आपको बहैसियत इंसान सलाहियतें दी हैं, जो भी दी हैं, उनको आप इस्तेमाल करें उसकी दुनिया को संवारने के लिए, क्योंकि ये दुनिया उसने आपके लिए बनाई है, क्योंकि उसको तो नहीं चाहिए थी। मैं देखिए आप लोगों की जो अप्रोच है, ये आजकल तो ये अप्रोच ही नहीं है। जैसे आजकल लोगों को मकबूल होना है, लोगों को फेमस होना है, ये अपनी ज़ात से मुतमईन होना। फेम अल्लाह देता है बाय द वे, बेशक। आप जो ये इज्जत जिल्लत व तो इज्जो मन तशा राइट। दूसरा, ये जो फेम शेम चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दुनियावी टेम्पररी चीज़ें हैं। क्या मतलब है, ये किसके लिए हैं? ये आपकी नार्सिसिस्ट ज़ात के लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है। अब ये भी तो हो गया ना कि बच्चे और पेरेंट्स में बहुत ये आ गया है, गैप बहुत। वो लव जिस पे होना चाहिए, पूरा बेस होना चाहिए, वो इमोशंस एक फैमिली में दूसरे बच्चों को आप दिखाएं कि प्यार से रहना है, फैमिली के साथ रहना है, कजिन्स के साथ रहना है, प्यार। वो जो प्यार है ना, वो माँ और औलाद में दूर होता जा रहा है। अब माएँ चाहें भी, पेरेंट्स चाहें भी, तो इतना दूर डिटैच कर दिया ना औलादों को कि अब वो नहीं सुनेंगी। अब वो चाहे पढ़ने लिखने की बात हो, चाहे मोरल्स की बात हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन की बात हो, वो अब ये समझो सोशल मीडिया है या व्हाटएवर, वो अपना ये करे जी, हाँ 2 मिनट अच्छा, हाँ वो अब क्या पेरेंट्स बात करेंगे, क्या डिस्कशंस करेंगे? आप लोगों का कहते हैं पैसे से कैसा ताल्लुक है?
I like money, but not that much that I will compromise my life for it. I have a life also. I like my free time. मैं सुबह उठ के 2 घंटे खामोशी में बैठ के चिड़ियों की आवाज़ सुनती हूँ, जानवरों को देखती हूँ. Yes. ये मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. मुझे उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता. बिल्कुल. पैसे चाहिए मुझे ट्रैवल करना होता है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, मुझे अपना एंजॉय करना होता है, मुझे आई हैव अ सर्टेन लाइफस्टाइल जिसको रखना, लेकिन मुझे बस उतना ही चाहिए ना, हलाल का. हाँ बस उतना ही. रात में अच्छी सी नींद आ नहीं, जाए. बस बगैर गोलियां फाके सो जाए. बस. आपके कैसे पैसे से रिलेशनशिप है? मेरे ये I love money, लेकिन एक बड़ी अच्छी सेंस से आ रहा हूँ ना, मतलब एक तो बहुत इज्जत से आ रहा हूँ, ताकि Save मुझे कर भी पाती हैं? मैं फील करूँ, प्राउड फील करूँ, यार मैं जो निवाला खा रही खरी हूँ तो बड़ा हलाल का है भाई, हलाल का है, बड़ी मेहनत है. खून पसीने का है. आप सेव कर पाती हैं या फिर फौरन स्पेंड कर देती हैं? यार मैं अच्छा, अब मैंने कहीं सेव करना सीखा है. अब तो पहले तो ये था कि नहीं भाई नहीं, ये आया पैसा ये गया, ये गया, हाँ, ये आया, ये आया, ये गया, ये आया ये गया. हाँ हाँ हाँ, उसमें नहीं, सेफ नहीं रहता है. सबसे ज्यादा किस चीज में स्पेंड करती हैं आप? मैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत पसंद है, गैजेट्स. तो उसमें ज़्यादा चाहता है, आइदर यूज इट और नॉट. पड़े रहती हैं चीज़ें, लेकिन मुझे पसंद है, शौक है. हाँ. और ट्रैवल, आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है. अच्छा, ये भी साथ में बताएं कि वाकई पैसा आने के बाद इंसान बदल जाता है? हाँ लो, ऑफ कोर्स. ऐसा. प्लीज टेक दिस क्वेश्चन बैक. आपके सामने है नहीं. हाँ, ये तो है, है बहुत ना? से. हाँ, हाय हाय. मुश्किल वक्त से निकलने के लिए क्या फॉर्मूला है? अगर मैं कहूंगी तो फिर लोग कहेंगे कि ये क्या फॉर्मूला है. अल्लाह से पनाह मांगे और कहें माफी देते अल्लाह मुझे, निकाल दे मुझे इससे. मुश्किल वक्त मेरा ख्याल है कि जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी है, सब पे आया. सब पे आया. अंबियों से लेकर के इंसान, हम क्या है भाई? नाम तो कुछ भी नहीं है. हाँ, तो उसको तो करना है ना, फिर वो तो चैलेंज है, वो करना पड़ता है. अब आप दुख में या रो के जिस तरह भी करना है, करना तो है, और वो अपना टाइम लेगा. आप अपना ट्राई करें बेस्ट कि ये निकल जाए ये वक्त किसी तरह भी, लेकिन वो आएगा. और आपकी जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था? जब मेरी अम्मी बीमार थी, when she was going through cancer. फिर 1.5 साल मैं उनके साथ ही थी, और वो बाहर की बात है ये, तो बाहर तो इतने रिश्तेदार भी नहीं होते हैं ना, तो आई वॉज दी ओनली वन, और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जो, दैट वॉज वेरी, बहुत ही बुरा टाइम था जिसने हिला के रख दिया अभी तक. क्योंकि पेरेंट्स का जाना इज लाइक, ये था. आपके लिए मुश्किल तरीन वक्त जिंदगी में कौन सा था? छोटे छोटे. माई ग्रैंड मदर, शी वेंट थ्रू एन इलनेस. अब मैं सोचती हूँ, उस वक्त लगता था, आई वॉज वेरी यंग, आई हैड टू लीव कॉलेज एंड लुक आफ्टर हर. उस ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह. बट अब मैं समझती हूँ कि वो मुश्किल नहीं था वो वक्त, वो अल्लाह का तोहफा था मुझे, आजमाइश थी वो मेरे लिए कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है बिकॉज ऑफ दैट टाइम. बिकॉज जब आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं ना, दैट इज़. और जिंदगी का सबसे खुशी वाला लम्हा आपकी जिंदगी में कौन सा था? खुशी वाला, when my Allah, there were so many, there are so many, there are जिसमें, और इतनी खुशी वाला में जिसमें आप खुशी से रो पड़ी हो. गम में तो रोते हैं, पर खुशी से जहाँ पे रो पड़ी हो. when my grandson was born. Wow. और अभी भी बात करते हो आप? When my grandson was born, yeah, first grandchild. Because I didn't think कि अल्लाह इतनी मोहलत देगा, इतनी ज़िंदगी देगा, ये वक्त आएगा, ये कभी सोचते नहीं हैं आप, क्योंकि ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है ना. तो बट when my grandson was born, वली जब पैदा हुआ है ना, मैं उसकी शक्ल देखी है. ऑफ कोर्स इट वाजंट लाइक बहुत सालों बाद या कुछ, बट जस्ट द फैक्ट when he was born.
اور نام پھر کس نے رکھا؟ میرین نے. مہرین نے. میرین اپنے بچوں کے نام میرین نے خود رکھے. آپ کے لیے زندگی کا ایسا کون سا لمحہ جہاں آپ بھی خوشی سے رو پڑی ہوں؟ یار بہت تھے, ایک نہیں, بہت بہت ہے نا. مجھے نہیں, کیونکہ گرینڈ پیرنٹس کا مجھے پتہ نہیں ہے, کیونکہ لیکن یہ ہے کہ جب میرے پاس وہ پپی آیا تھا, چھوٹو ڈاگ آیا تھا, وہ یہ چھوٹے موٹے Yes, of course, of course. And the animals, animals are like your children. میرے تو میرے بچوں جیسے, میں تو ان سے باتیں کرتی ہوں. میرے اسٹریز بھی ہیں, میں نے آف دا اسٹریٹ بھی پالے ہوئے ہیں. میری اتنی ساری بلیاں ہیں, کچھ بلیاں اندر آتی ہیں, باہر چلی جاتی ہیں, کچھ اندر رہتی ہیں. They are like my children, they are like my companions, and they are incredibly, they give you so much love. Animals and plants, and یہ آپ کی زندگی کو اتنا فلفل کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو خود کو کوئی پیغام دینا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ خود کو, اپنے آپ کو کوئی پیغام اگر دینا تو کیا؟ کہ اب جو آج کل کا جو پیغام میں دوں گی کہ یار پلیز فار گاڈ سیکس پلانٹس لگا دیں, درخت لگائیں. یا آپ اپنے آپ کو پیغام دیں؟ یہ میں ہاں یار 2 جا کے درخت کہیں لگا دیں, یا ایز اے گفٹ اگر کسی کے پاس آپ جا رہے ہو تو آپ چھوٹا سا پلانٹ لے کے چلے جاؤ. مجھے اس کے کہ فروٹ جا رہا ہے, یہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, چھوٹا سا پلانٹ دے دو. تو یہ میں اپنے آپ کو بھی میسج دوں گی کہ ورنہ تو آتے رہتے ہیں روز کے میسیجز, یہ لمبا ہے. آپ کیا دیں گی پیغام خود کو؟ ہر لمحہ شکر, گریٹیٹیوڈ. when you learn کہ آپ کو اندرون گریٹیٹیوڈ کرنا ہے نا, پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. بیکاز پھر آپ کو وہ طلب نہیں رہتی آف تھنگز دیٹ آر مٹیریل, بیکاز آپ کے پاس اتنا اللہ نے دیا ہے. آپ دیکھیں جو فلڈ میں لوگ بہ رہے ہیں, جو پورے گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں, اور وہ صرف غریب لوگ نہیں ہیں, اچھے بھلے جو افلوئنٹ لوگ تھے ان کے بھی گھر جو خراب ہو گئے, تب آپ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس فلانا جوڑا نہیں ہے, فلانا جوتا نہیں ہے, فلانا بیگ نہیں ہے. آگے کا تکلامی کی معذرت.